Okay. So basically today we have to discuss about which chapter. If you remember, previous class was on matrices and I told you कि matrices और एक दूसरा chapter है determinants. ये दोनों काफी इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं. तो जैसे हमने पहले मैट्रिसेस पढ़ा था उसमें कहीं कहीं पे डिटर्मिनेंट्स का भी यूज था. आज डिटर्मिनेंट्स हम लोग करने वाले हैं, इसमें कहीं कहीं पे मैट्रिसेस का भी यूज हो सकता है. लेकिन मोस्टली यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डील कर रहे होंगे, या फिर हम लोग डील कर रहे होंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह के केसेस पे भी क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं. सो आई एम Subuh Nadeem, senior math faculty, and this is a live crash course for you. So let us start now. So this is the first question which we are dealing today. And as you can see here, it says let A is a matrix whose entries are greatest integer of x plus 1. So here greatest integer is what the this bracket means. It is written in the question itself, where T bracket denotes the greatest integer less than or equal to T. Now this is the matrix A. They are saying that determinant of this matrix A is equal to 192. Then what is the set of values of x basically? So which interval x will lie? So we can first write this A matrix as, we know the property of greatest integer function, that x plus n is equal to greatest integer of x plus n, where n belong to any integer. So if n is an integer, it can come outside. So we can write it as greatest integer of x plus 1, and then greatest integer of x plus 2, and then greatest integer of x plus 3. And then we have greatest integer of x here, greatest integer of x plus 3, greatest integer of x plus 3, and then greatest integer of x here, and then greatest integer of x plus 2, greatest integer of x plus 4. So this is what we are getting. Now we want to find its determinant. So determinant, what we do, if we talk about the determinant, so we will change this bracket into straight lines. And we will see that determinant of A is determinant of this entries. Now, if you further apply the property of determinants, what will happen? Let us apply the properties of determinant. So we can say that suppose rho 1 is rho 1 minus rho 2. We take rho 1 as rho 1 minus rho 2. This is rho 1. And rho 2 as rho 2 minus rho 3. So rho 1 minus rho 2 is rho 1. So it will be 1. This will be minus 1. And this will be 0. 1 minus 1, 0. When you will subtract second row's entries from the first row entry. And then second row minus third row. So it will be 0. This will be 1. This will be minus 1. It will be 0, 1, minus 1. And third row, we can't do anything. So greatest integer of x. And then we have greatest integer of x plus 2. And then we have greatest integer of x plus 4. So this is what we can write. Now, if we expand this determinant about the first row, let us suppose. So 1 into greatest integer of x plus 4 plus greatest integer of x plus 2, it will become this cross this minus this cross this.
Next entry is -1, so its position is odd. It will become plus. This will be 0, and this will be minus minus plus. It will be greatest integer of x. So what we come across is greatest integer of x is coming 3 times, and plus what we are getting 4 plus 2, 6. Now it is given in the question that 3 greatest integer of x plus 6, which is the determinant, is equal to 192. This is what it is given. So this will become 3 times greatest integer of x is equal to 192 minus 6 will become 186. And then we divide by 3, we will get 3, 6, 18, 3, 2, 6. So greatest integer of x is 62. So what will be x? X will belong to 62 included to 63 excluded. So it will be 62, 63, 62 included, 63 excluded. So if we see the option B is the correct option, right? Let us come to the next question. Let A comma 0, B comma 2B plus 1, and C 0 comma B, such that B is not equal to 0 and mod B is not equal to 1. Be points such that the area of triangle ABC is 1 square unit. Then the sum of all possible values of A is. Okay, so the area is 1 square unit, which means determinant of A 0, 1, x1, y1, 1. Then x2, which is B, y2, which is 2b plus 1, 1. And then x3, which is 0, y3, which is B, and then 1. And half of this is equal to plus minus 1. That is the area. Since we take mod here, area is always positive. So if we remove the mod, from here, there is one another term, then it can be 1 also, or it can be minus 1 also. Now, if we proceed, we can here directly expand the determinant. So first element and 2b plus 1 minus b, it will become. Then it is 0. Then 1 into b square minus 0. So it will be half, which is equal to plus minus 1. So it will be half a b plus 1 plus b square is equal to plus minus 1. So you can write it as 2. Let us take on the right side. So a b plus 1 plus b square is equal to plus minus 2. Now we can write a is equal to plus minus 2 minus b square by b plus 1. तो a की जो वैल्यूज आ रही हैं उनका सम निकालना है. तो a की दो वैल्यूज आ रही है. एक वैल्यू आ रही है 2 माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस 1. दूसरी आ रही है -2 माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस 1. तो a की ये दो वैल्यूज आ रही है. अब अगर हमें इनका सम निकालना है, इनको ऐड करना है, तो सम विल बी इक्वल टू बी प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं. और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 माइनस बी स्क्वायर -2 माइनस बी स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 बी स्क्वायर बाई बी प्लस 1.
तो हमारे पास जो सम आ रहा है ए की दो वैल्यूज का, वो -2b² / b+1 आ रहा है। तो दैट इज ऑप्शन डी। तो हम देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जहां जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज पहले लगाया, उसके बाद एक्सपेंशन किया, जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद फिर एक्सपैंड करेंगे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here, as you can see, trigonometric functions are also involved. Fx is a function which is determinant of sine square x minus 2 plus cos square x cos 2x, then 2 plus sine square x cos square x cos 2x, then sine square x cos square x 1 plus cos 2x, and x belongs to 0 comma pi। तो हमें बताना है कि fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम एज सच अभी तुरंत अगर एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक्सपेंशन करने से पहले हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज तरीके से लगानी पड़ेगी। पहले एंट्रीज लिख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये लगा लेते हैं कि कॉलम 1 इज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो हमें देखने में मिल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और -2 + 1 विल बी दिस एंट्री। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 2 + 1 विल बी रिटन हियर। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। बाकी हम एंट्रीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। सो बाकी एंट्रीज जैसी थी वैसे ही अभी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में क्या मिल रहा है ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट कॉलम में -1 3 1 आ रहा है, और ये है -2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन अगेन कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या है, cos 2x और 1 प्लस कॉस 2x। अब इसके बाद हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो का जो पहले कॉलम का एलिमेंट है वो 0 हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है, तो अगर हम रो 1 को लिख दें रो 1 प्लस रो 3, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर cos 2x + 1 + cos 2x हो जाएगा 1 + 2 cos। दिस इज 1 + 2 cos 2x। और दूसरा करते हैं रो 2 को लिख लेते हैं रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 3। तो 3 - 3 0 हो जाएगा ये भी। ये cos स्क्वायर एक्स -3 cos स्क्वायर एक्स, तो -2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा। और ये cos 2x -1 -3 cos 2x, तो ये -3 -2 cos 2x बचेगा। ठीक है, लास्ट जो रो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सपैंड करते हैं, तो पहला एंट्री 0 है, दूसरा एंट्री 0 है, तीसरा 1 है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो मिल रहा है हमें,
-2 + 2 cos square x multiplied with -3 - 2 cos 2x, and then we have minus +2 cos square x, and then we have 1 + 2 cos 2x. इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो -3 × -2 will be +6, and then it will be +4 cos 2x, then it will be -6 cos square x, then it will be -4 cos square x cos 2x, and here it will be 2 cos square x plus 4 cos square x into cos 2x. एक दो टर्म तो आपस में कैंसिल हो रहा है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म, ये -4 cos square x cos 2x है, ये +4 cos square cos 2x है। और क्या मिल रहा है हमें, यहां से मिल रहा है 6 + 4 cos 2x और -6 cos square plus 2 cos square is -4 cos square x, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 6 + 4 cos 2x की आइडेंटिटी हमें पता है, 2 cos square x -1 होता है, तो इसको 2 cos square x -1 लिख लेते हैं, और ये -4 cos square x है, तो ये हो जाएगा 6 + 8 cos square x -4 -4 cos square x, तो ये हो जाएगा 6 - 4 2 + 4 cos square x हो जाएगा। अब ये क्या है, ये एफ एक्स है, दिस इज व्हाट एफ एक्स इज। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स चाहिए, x 0 से पाई के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब cos स्क्वायर x मैक्सिमम होगा, सो दिस इज मैक्सिमम इक्वल टू 1, cos x ±1 के बीच में लाई करता है, तो cos स्क्वायर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि cos स्क्वायर x 0 से 1 पे लाई करेगा। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो फिर क्या हो सकती है, 2 + 4 × 1 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हमें क्या लेना है, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, now I would like to introduce you about the resources which we have. So for that I'm coming to this slide, then we will start doing questions again. So here, as you can see that this ebooks listing is there, and this is the link to which you can go to ebook. This is given in the description, and you can download this free of cost, and it is very useful and very important book if you are preparing for JEE Mains. And what are the different type of books highlighted here? There are other books also, like यहाँ पे JEE Main 2025 chapter wise weightage, इसका एक PDF है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पता चलेगा कि हर चैप्टर का क्या वेटेज होगा। उसके बाद IIT JEE मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, तो यहाँ पर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 40% ऑफ द सिलेबस पढ़ के हम 100% तक के मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स और टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रिसोर्सेज हैं, वो भी हमें मिल सकते हैं। तो ये सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां पे आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। This is the next question. Now, as you can see here, it is given the number of distinct real roots of this equation. So left side में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, राइट साइड में 0 है,
और एक्स का जो इंटरवल है -π/4 से लेके π/4 के बीच में है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स लेते हैं और कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लेते हैं और कॉस एक्स साइन एक्स लेते हैं इक्वल टू 0, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, रो कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग कॉलम ओके, तो हम किसी भी रो को दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का फंक्शन है। ये मैट्रिक्स जो है इसके करस्पॉन्डिंग वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि रो वन को ले लेते हैं, रो वन माइनस रो टू। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो जाएगा। और रो टू को ले लेते हैं, रो टू माइनस रो थ्री। तो ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस एक्स 0, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। नीचे में रह गया cos x साइन एक्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दिख रहा है कि जो हमारे पास पहला रो है, थोड़ा बड़ा करके मैं लिख देता हूं, उसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो cos x माइनस साइन एक्स है, तो उसको माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा जा सकता है। फिर अगला एलिमेंट 0 है। अगर हम सेकेंड रो में जाएं तो 0 और उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और नीचे वाले रो में है cos x साइन एक्स। अब यहां पर फर्स्ट रो से हम अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं फर्स्ट रो से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये 0। सेकेंड रो से भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। और ये दिया हुआ इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो बाहर में है ही। फर्स्ट रो के अबाउट अगर एक्सपैंड करेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। जो दूसरा टर्म आएगा हमारे पास वो माइनस माइनस +1, और ये 0 होगा और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस कॉस एक्स। और थर्ड वाले टर्म को देखें तो वो तो 0 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो 0 ही मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सो यहां से एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और एक साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 0। अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं, इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो सकता है, या साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 0 हो सकता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू -2 कॉस एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को tan एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं अगर कॉस एक्स को डिवाइड कर दें इधर तो। और यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो है tan एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू -2 हो जाएगा।
तो जो tan x है वो अगर 1 है तो इस इंटरवल पे -π/4 से लेके π/4 दे आर इंक्लूडेड। 1 कहां पे देगा? π/4 पे देगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4 among the given in the given interval। tan x -2 जो होगा वो -π/4 के लेफ्ट में मिलेगा। -π/4 से लेकर 0 तक, -1 से 0 तक की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू -2 जो आएगी वो आएगी -π/2 से लेके -π/4 में। सो ये वैल्यू डज नॉट लाई इन द इंटरवल -π/4, π/4, but it lies -π/2, -π/4। तो हमारे लिए तो -π/2 से लेके -π/4 वाला इंटरवल लेना नहीं है, तो हमें बस एक सॉल्यूशन उस इंटरवल पे मिल रहा है, x इज इक्वल टू π/4। तो ये जो बी ऑप्शन हमारे पास है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question says that let A is equal to 2, 3, A0, where A belongs to real number, be written as P plus Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. If determinant of Q is equal to 9, then the modulus of the sum of all possible values of determinant of P is equal to। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अगर हम ए मैट्रिक्स को P प्लस क्यू लिख रहे हैं, जहां पे P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास P होगा वो होगा A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, और जो Q होगा वो होगा A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, जिससे P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि P का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो P के बराबर हो जाएगा। और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि Q का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस Q के बराबर हो जाएगा। तो वो देख सकते हैं। और जब दोनों को ऐड किया जाएगा P प्लस क्यू को, तो A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, A/2 प्लस A/2 A हो जाएगा। तो दिस वी नो। अब इसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 9। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ Q है ये 9 है। तो पहले Q निकाल लेते हैं, Q क्या है। तो A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 अगर हम निकालते हैं तो हाफ, एंड A माइनस A ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स A है 2, 3, A0, इसको लिखना पड़ेगा, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2A30। इसको लिख सकते हैं हाफ, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, 3 - A रहेगा, और यहाँ पे A-3 रहेगा, और ये 0 - 0 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ, और A-3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 1, ये -1 और ये 0। तो ये आ जाएगा A-3/2 इंटू 0, 1, -1, 0। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्यू मैट्रिक्स आ रहा है। ये क्यू मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 है। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो A-3/2 तो एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। नहीं, इनफैक्ट A-3/2 इसके हर एलिमेंट में होगा ना।
तो इफ यू रिमेम्बर, डिटर्मिनेंट में ये होता है कि किसी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन आता है, और मैट्रिक्स में क्या होता है कि पूरे मैट्रिक्स में से एक कॉमन लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं a-3/2 -a-3/2 एंड a-3/2, और ये जीरो। तो उस केस से क्या होगा कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a-3/2 -a-3/2 a-3/2 जीरो। तो ये a-3/2 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस a-3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू a-3/2 का होल स्क्वायर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिया हुआ है 9। तो हम ये कह सकते हैं कि a-3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां से a-3/2 क्या मिलेगा, +-3। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 + 3 9 आ सकती है, या फिर -6 + 3 -3 आ सकती है। तो a की ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब हमारे पास ये कहा जा रहा है कि जो p मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम क्या होगा। तो p मैट्रिक्स क्या है, a + a ट्रांसपोज/2। p मैट्रिक्स इज a + a ट्रांसपोज/2। तो यहां पर भी हम a पहले ले लेते हैं, तो ये a जो है वो क्या है, 2 3 a0, और प्लस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2a 3 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 2 + 2 4, 3 + a हो जाएगा, ये a + 3 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां से अगर हम p का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इससे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 3 + a/2 हो जाएगा, ये भी 3 + a/2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालते हैं, तो ये 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, -3 + a/2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो अब a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9 और -3। तो a की वैल्यू अगर 9 होती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या होगा, -3 + 9/2 का स्क्वायर, ये जगह 12/2, दैट विल बी 6। 6 स्क्वायर इज 36, तो ये -36 होगा। और अगर हम a की वैल्यू ले लेते हैं -3, दूसरी वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये -3 + 3 जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p विल बी जीरो। तो अब फाइनली क्वेश्चन का फाइनल जो स्टेज है वहां पे हम लोग पहुंच गए। तो क्या कह रहा है, देन द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज है डिटर्मिनेंट ऑफ p की, एक -36 है, एक जीरो है। तो इन दोनों को अगर हम मॉड लेके ऐड करते हैं, यू टेक द मॉड एंड देन यू ऐड इट, क्योंकि इसमें क्या रहा है ना कि यू हैव टू टेक, ये जो स्टेटमेंट है, मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो मॉडुलस ऑफ द सम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम ऐड करेंगे फिर मॉड लेंगे, ठीक है। तो यहां पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मॉड पहले लें या ऐड पहले करें, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो उससे फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे तो जीरो है दूसरी वैल्यू, तो ये -36 का मॉड विच विल बी 36। सो दिस विल बी योर आंसर। So let us see which option is correct now. तो ए ऑप्शन जो है वो 36 दे रहा है, विल से दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थोड़ा सा डिस्कस, जैसे हम लोग रिसोर्सेस पे कर रहे थे, फिर आ जाते हैं, 1 मिनट का टाइम और लगाते हैं उस पर, और जानते हैं कि क्या क्या हमारे लिए है उसमें। तो अभी मैंने ये बताया था, ई बुक्स लिस्टिंग, इसका जो लिंक है वो अवेलेबल है।
और किस तरह तरह की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी और हैं। जैसे यहाँ पर जेई में 2025 चैप्टर वाइज वेटेज, ये वाली पीडीएफ तो मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया, इसका ये लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है जेई मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसका भी जो है पीडीएफ अवेलेबल है, ये लिंक नीचे मिल जाएगी। जेई मेन प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। वी जनरली यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ड्यूरिंग रिवीजन, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ है, तो अगर हमें कहीं पे दिक्कत हुई तो हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जेई मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये लिंक है जेई मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का, तो ये भी रिवीजन के टाइम काफी काम आता है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, वो सारे एक जगह मिल जाएंगे एक पीडीएफ में। सो आई विल रिकमेंड कि ये सब आप लोग डाउनलोड करो, और उसके लिए फ्री डाउनलोड है, यू हैव टू जस्ट रजिस्टर एंड यू कैन डाउनलोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। So it says that A, B, C, D be in arithmetic progression with common difference lambda. And if x plus A minus C, x plus B, x plus A, x minus 1, x plus C, x plus B, x minus B plus D, x plus D, x plus C, determinant is equal to 2, then value of lambda square is equal to। ठीक है, तो यहां से अगर कॉमन डिफरेंस लैम्डा है, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा, क्योंकि जो c होगा वो a+2 लैम्डा होगा, 2 यूनिट आगे है। ये हो गया x प्लस बी, ये हो गया x प्लस ए, ये x प्लस सी है, ये x प्लस बी है, ये x प्लस डी है, ये x प्लस सी है, यहाँ x-1 है, और यहाँ पे d माइनस बी अगर लेंगे तो 3 लैम्डा हो जाएगा, x+3 लैम्डा। तो ये आ रहा है, और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि रो ऑपरेशन करते हैं। तो रो ऑपरेशन अगर करेंगे तो रो 1 को लिख सकते हैं रो 1 माइनस रो 2, तो ये हो जाएगा 1 - 2 लैम्डा हेयर। ये हो जाएगा एक्स कैंसिल, बी माइनस सी क्या होगा, -लैम्डा होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर लैम्डा है तो c-b लैम्डा, b-c -लैम्डा। यहाँ एक्स कैंसिल होगा, यहाँ a-b होगा, a-b भी -लैम्डा होगा। और यहाँ पे रो 2 को हम क्या कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 3 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स कैंसिल होगा, -1 -3 लैम्डा होगा। और यहाँ पर एक्स कैंसिल होगा, c-d, तो c-d क्या होता है, -लैम्डा होता है। यहाँ पे एक्स कैंसिल होगा, b-c, तो b-c भी -लैम्डा होता है। ये हो जाएगा x+3 लैम्डा, और हो जाएगा x+d, x+c, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो अब आगे प्रोसीड अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो कॉलम 1 को ले लेते, कॉलम 2 को ले लेते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो 1 - 2 लैम्डा, ये 0 हो जाएगा, ये -लैम्डा है। ये -1 - 3 लैम्डा है, ये 0 हो जाएगा, ये -लैम्डा है। ये x+3 लैम्डा है, ये x+d माइनस x - c हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, d - c विल बी
लैम्डा, और ये एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं। तो पहला दो एलिमेंट तो जीरो ही है, तीसरा एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम का है तो ऑड एंट्री है, तो माइनस लैम्डा लेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा इंटू वन माइनस टू लैम्डा, और यहां पर माइनस माइनस प्लस लैम्डा इंटू प्लस लैम्डा इंटू माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा। ओके, तो ये टू के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टू, और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा और प्लस टू लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा और माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू टू। यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू टू। सो यहां से लैम्डा क्यूब प्लस टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लैम्डा स्क्वायर निकालना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, लेट अस सी कहीं पे किसी स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। ए माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक आ गया है, क्यूबिक का तो सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं और यहाँ पे निकलेगा नहीं। ये हमने किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, रो वन इज रो वन माइनस रो टू, ये किया था। तो नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पे तो बस हमने कॉमन डिफरेंस लिया था ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया था। ये ए माइनस सी माइनस टू लैम्डा हो गया था, फिर ये जैसा है, फिर ये जैसा है, और ये हो गया था डी माइनस बी। अच्छा, तो डी माइनस बी जो होता है एक्स, डी माइनस बी टू लैम्डा होता है, थ्री लैम्डा नहीं होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये टू लैम्डा होता है डी माइनस, क्योंकि डी, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो दो इंटरवल के बाद आ रहा है तो टू लैम्डा होगा। तो यहां से ये है वन माइनस टू लैम्डा, और ये हमने क्या था, रो वन को रो वन माइनस रो टू, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रो टू को क्या था, रो टू माइनस रो थ्री, तो इसमें एक्स एक्स कैंसिल होगा, माइनस वन माइनस टू लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये वाला भी होगा एक्स प्लस टू लैम्डा। उसके बाद कॉलम टू को कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री किया था, तो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आए इसको सही से लिख देते हैं, ये टू है, ये भी टू है। उसके बाद हमने इसको ओपन किया तो माइनस लैम्डा, दैट इज करेक्ट, और वन माइनस टू लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, एंड हियर इट विल बी लैम्डा इंटू माइनस वन माइनस टू लैम्डा, तो ये जो है टू है। कभी कभी केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, तो वी हैव टू करेक्ट इट। यहाँ पर ये माइनस टू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सो टू लैम्डा स्क्वायर और माइनस टू लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 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 लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस टू लैम्डा हो जाएगा।
एंड दिस इज इक्वल टू 2, तो यहां से 2 लैम्डा स्क्वायर, अब ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर 1 आएगा, और हमें निकालना क्या था, लैम्डा स्क्वायर ही निकालना था। सो दिस विल बी द आंसर। तो हमारे पास की जो वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर की, वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। So what we observe, consider the system of linear equations minus x plus y plus 2z is equal to 0, 3x minus ay plus 5z is equal to 1, 2x minus 2y minus az is equal to 7. Let S1 be the set of all a belonging to real number for which the system is inconsistent, मतलब no solution. And S2 be the set of all a belonging to real number for which the system has infinitely many solutions. ठीक है, तो S1 जो सेट है उसमें नो सॉल्यूशन होगा, और S2 जो सेट है उसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। If NS1 and NS2 denote the number of elements in S1 and S2 respectively, then what is the value of NS1 and what is the value of NS2? तो हमें एक ही वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों के लिए इन्फिनाइटली मेनी लेना चाहें या नो सॉल्यूशन लेना चाहें, दोनों के लिए डेल्टा तो जीरो होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों ही केस में जो डेल्टा होता है, क्रेमर्स रूल का डेल्टा, वो जीरो होता है। बाकी अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री ये तीनों भी जीरो होंगे। और नो सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। ठीक है, तो पहले डेल्टा इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, पहला काम तो ये कर ही लेते हैं। तो डेल्टा क्या है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है वो लिख लेते हैं, -1 1 2, और क्या है 3 - a 5, और क्या है 2 - 2 - a। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a² -1 × a² + 10, देन -1, और ये -3a -10 हो जाएगा, देन +2 -6 +2a हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल रहा है -a² -10, यहां से मिल रहा है +3a +10, यहां से मिल रहा है -12 +4a। तो यहां पर अगर हम -10 और +10 को कैंसिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो -a² एंड देन वी हैव 3a + 4a 7a -12, ये होगा। और ये जो है इक्वल टू जीरो है। तो इफ -a² + 7a -12 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया a² - 7a + 12 इक्वल टू जीरो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी आसानी से, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से हमें क्या मिलेगा, a - 4 एक फैक्टर आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा a - 3 इज इक्वल टू जीरो। यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3 और 4।
तो ए की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें आगे का देखना है कि इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेल्टा वन निकालते हैं, देखते हैं कि डेल्टा वन का क्या होता है। तो अच्छा, ए भी होना चाहिए ना, तो डेल्टा वन ही लिखते हैं। तो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू, इफ वी सी हियर, 017, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, 1 - a - 2, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा 25 - a। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जीरो होगा, ये ए स्क्वायर। तो ये तो पहला तो जीरो ही हो रहा है, दूसरा -1 अगर लेते हैं तो -a - 35 हो जाएगा। तीसरा लेते हैं +2, तो -2 + 7a हो जाएगा। तो ये a और 15a हो जाएगा। और ये 35 - 4 31 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 4। इफ a इज इक्वल टू 3, तो डेल्टा वन क्या आएगा, 15 × 3 + 31। और ये वैल्यू डेफिनेटली जीरो के बराबर नहीं है। और a इक्वल टू 4 लेते हैं तो डेल्टा वन क्या आएगा, 15 × 4 + 31। ये भी जीरो के बराबर नहीं है। मतलब जो पहला डेल्टा वन ही हमने लिया वो नॉन जीरो हो गया। तो इसका मतलब a की ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए डेल्टा जीरो है, और डेल्टा वन जो है जीरो नहीं है। तो हमें पता है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन होता है। और मैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि तीनों जीरो होने चाहिए। तो डेल्टा वन तो नॉन जीरो आ गया, पहला ही नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो है ही, तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों ही केस में, ए को 3 लें या ए को 4 लें, दोनों ही केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि S1 जो है वो ए की वैल्यूज रख रहा है, जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, तो ये 2 होगा। और S2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, NS2। सो NS1 इज इक्वल टू 2 एंड NS2 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। NS1 is equal to 2 and NS2 is equal to 0. Okay, so let us take one more question. If the system of linear equations, this one, has infinitely many solutions, then alpha plus beta minus alpha beta is equal to, तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो करते हैं पहले, तो 2 1 -1, 1 -1 -1 एंड 3 3 बीटा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, 2 और माइनस बीटा +3 हो जाएगा। और फिर -1 लेते हैं तो बीटा +3 हो जाएगा। फिर -1 लेते हैं तो 3 + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से -2 बीटा माइनस बीटा, तो वी विल गेट -3 बीटा। और 6 आएगा, यहां से -6 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है। डेल्टा इक्वल टू 0 करेंगे तो बीटा की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है। अब अगर हम डेल्टा वन को भी जीरो कर देते हैं, क्योंकि सारे डेल्टा जीरो होने चाहिए, तो डेल्टा वन को भी जीरो कर देते हैं। तो डेल्टा वन के लिए क्या आएगा, 3 α 3 फर्स्ट कॉलम में, और उसके बाद
1 - 1 3, उसके बाद -1 - 1 बीटा। तो बीटा तो अभी हमने निकाल ही लिया, -1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 × ये 1 और +3 हो जाएगा। ये माइनस, और ये हो जाएगा -α +3 हो जाएगा। तो ये -1 जो है 3α +3 हो जाएगा, = 0। ठीक है। अब इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो 12 हो जाएगा। एक्सपैंड नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। +α -3 एंड देन -3α -3, दिस = 0। तो α - 3α विल बी -2α, और 12 - 6 it will become +6 = 0। So अल्फा = 3। अब अगर हम चाहें तो Δ2 को भी चेक कर सकते हैं कि वो 0 आना चाहिए, और Δ3 भी 0 आना चाहिए। लेकिन अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकली है वो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर टाइम है तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कम टाइम है, एग्जाम का टाइम है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चेक करने में। हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि डेल्टा भी 0 है, Δ1 भी 0 है, तो बाकी भी दोनों 0 होंगे, क्योंकि ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बस इसी अल्फा बीटा के लिए मिल रहा है, और कोई अल्फा बीटा की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा = बीटा इज -1 and alpha is 3। तो ये हो जाएगा 2 + 3 which is = 5। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनली क्या आएगा? = 5। दिस विल बी द आंसर। तो दीज वर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि जेई में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हमारी थ्योरी भी रिवाइज हो जा रही है। तो कल हमने मैट्रिसेस किया था, आज डिटर्मिनेंट कर लिया। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। एंड अभी रिसोर्सेज के ऊपर अगर बात कर रहे थे, सो बेसिकली दिस इज अ फीडबैक फॉर्म। अगर कोई भी फीडबैक हो वीडियो की रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग, तो इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, और उसके बाद अपना फीडबैक दे सकते हो, जिससे हमें भी हेल्प मिलेगी इम्प्रूव करने में। एंड देन वी हैव, if you have any queries, for any queries please reach out on liveclasses@entrance360.com। तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हो। So that is all for today's class. Thank you everyone.